Good morning and Jai Hind students. Welcome to the online classes. Continuing with chapter number 3, that is management and business environment. Yesterday we have discussed about the management and business environment. What is business environment? Business environment refers to all those external conditions and forces that affect the working of a business enterprise. And in short, we have discussed too what could be the external condition and forces, right? Then we have discussed the features of business environment. There are 7 features of business environment: totality of external forces, general and specific forces, interrelated elements, dynamic nature, uncertainty, complexity, and relativity. So dear students, once again I want to tell you, I want to make a recap of this, that how business environment affect a business. Business environment may directly or indirectly external और इंटरनल फोर्सेस और कंडीशंस का से फ़र्क पड़ता है. फोर्सेस को डिवाइड किया हुआ है 2 फॉर्म में, दैट इज़ जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल में आपके इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल कंडीशंस होती हैं. बेटा मैंने आपको कल भी दिया था ये एग्जांपल. अगर हम पॉलिटिकल कंडीशंस या लीगल कंडीशंस की बात करते हैं तो डिमोनेटाइजेशन में पीएम मोदी जी ने एक ही ओवर अ नाइट ये डिसीजन लिया था कि 500 और 1000 के नोट बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस फर्म पर फ़र्क पड़ेगा. स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बिजनेस एनवायरनमेंट इन दिस चैप्टर. सो टुडे just come up with the book. Today we will be starting with the importance of business environment. Before that, I want you to see this chart showing general and specific environment of any business. If we are talking about business, तो in business there are 4 departments जो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ. Number of times I have told you. Production department, finance department, right? Marketing department and personal department. Personal is HR department, right? This we are talking about the business we are dealing with. Okay, number of departments are 4: production, finance, marketing and HR. Then comes specific environment. Specific environment में हमारे owners और investors आ जाते हैं. Then comes creditors, एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ काम करते हैं वो स्ट्राइक पर आ जाएं तो अल्टीमेटली डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी पर, हमारे बिजनेस पर. गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एनवायरनमेंट जिनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस पर, तो दे आर योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. बेटा ये सब आप पर्टिकुलर एक एक पढ़ोगे अभी आगे, right? Okay, so let's start with the importance of business environment today. As you all know that it is very important for any company to understand the external environment so that they can develop the plans and strategies to deal with the environmental forces, right? And if a company is able to adapt इट्स एनवायरनमेंट, अगर किसी भी कंपनी को ये पता होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, दे आर डेवलपिंग प्लान्स, दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू इट, एंड इफ़ अ कंपनी इज़ एबल टू अडेप्ट इट तो वो बहुत लंबा जाएगी. बट इफ़ द कंपनी फेल्स टू अडेप्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंपनी को नहीं पता चलेगा तो इट मे फेल इन लॉन्ग रन, लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी, जैसे डायनासोर डिसअपियर हो गए थे. It's an example here, right? And I can give you another example like motorcycle producers. UK में जब मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस की गई तो मोटरसाइकिल के प्रोड्यूसर्स UK में फेल हो गए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ कॉप अप नहीं कर पाए थे. बट जापानीज़ प्रोड्यूसर इस चीज़ में सक्सेडेड हो गए बिकॉज
उन लोगों ने पहले से ही स्ट्रैटेजीज़ को इवॉल्व किया था, टेक्निक्स बनाई थी हाउ टू डील विद टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और अदर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, right? So now comes the benefit, the importance of business environment. Very interesting. Let's read it one by one. The very first point is helps in identification of opportunities to get first mover advantage. बेटा इस लाइन से ही, इस पॉइंट से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर हम सभी के पास एक ना एक बार लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती कई बार हैं, इट्स अप टू यू. जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले यू हैव टू ग्रैब इट, इससे पहले कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ले जाए. सो आइडेंटिफाई करना कि ये हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसकी सबसे पहले एडवांटेज लेनी. उसको बोलते हैं टू हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो बेटा अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव और फेवरेबल फोर्स फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, बाहर से ही तो आती है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बट पॉजिटिव होते हैं और फेवरेबल होते हैं, जो कि किसी भी फर्म की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करते हैं. राइट, कोई कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, एकदम से इन्वेस्टर आपके पास आए और बोले कि यार योर कंपनी इज़ गोइंग वेरी गुड, आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी विद यू एंड यू आर वेरी मच इन नीड ऑफ मनी. तो आपके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई ना, आप इसे ग्रैब करना चाहोगे नहीं चाहोगे? सो बाय कीपिंग इन टच विद द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी. आप उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो ताकि उसे अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सको. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. मोटर बाइक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी. जब मोटर बाइक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो एक मोटर बाइक प्रोड्यूसिंग कंपनी ने स्टेप्स लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के. मोटर बाइक कंपनी को पता चल गया था कि डिमांड फॉर मोटर बाइक इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज, तो उन लोगों ने तुरंत स्टेप लिए. मार्केट से जब उन्हें पता चला उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और न्यू मॉडल लॉन्च कर दिए मार्केट में टू ल्योर मीन्स अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. ठीक है भाई, जो मोटरसाइकिल मार्केट में हैं वो तो सबके पास मिल जाएंगी, और क्या करना चाहिए? उन्होंने नए मॉडल्स लॉन्च किए विद एक्स्ट्रा थिंग्स so that they could attract the customers, and this is what done by the Hero Honda. It was a leading position in the Indian bike market if we are talking about Hero Honda. Hero Honda ने ऐसा करके get first mover advantage, right? सबसे पहले then comes the another one. अगर हम बात करते हैं कि किसी भी लाइक सपोज़ आपके BST के सब्जेक्ट में सिलेबस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, अगर पब्लिशर को पहले ही पता चल जाए कि वो कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड द पब्लिशर ब्रिंग आउट द रिवाइज्ड एडिशन एट द अर्लीस्ट टू रीप द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब काट दे लोगों को, इससे पहले लोग कहीं और जाएं, वो पब्लिशर अपने पास वो रिवाइज्ड एडिशन अवेल करा ले. तो ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास पहले मिलेगा लोग उसके पास उसे अप्रोच करेंगे. सो दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना है. यू हैव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़. सो इन टोटल यू नीड टू फाइंड आउट दी अपॉर्चुनिटीज़. आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे तो आप समझ जाओगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर इन आउटसाइड एनवायरनमेंट, और आप उन चेंजेस के साथ अपनी चीज़ों को रिवाइज करके मार्केट में न्यू कुछ चीज़ लॉन्च करोगे तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू ल्योर दी न्यू कस्टमर्स. ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट और वार्निंग सिग्नल. बेटा जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं लोगों को, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं. जब मिलती हैं तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होता है. अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करते हो तो आप पीछे रह जाओगे. द थिंग इज़ यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वंस इट कम्स टू यू. इसी तरह थ्रेट्स और वार्निंग भी आपकी लाइफ में आते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट दोज थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल्स
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नॉलेज रखने से बिजनेस फर्म के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल. अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा पॉजिटिव और फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रेट और वार्निंग सिग्नल जो हर किसी को मिलते हैं, दोज आर द नेगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी फर्म में आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, राइट. सो एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट. अगर आप ये जान जाओ कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सो इफ़ यू कुड स्कैन इट, तो इट वुड बी हेल्पफुल टू यू टू आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट्स इन फ्यूचर. आपको पता होगा फ्यूचर में मेरा ये नुकसान हो सकता है, आई शुड बी वेरी केयरफुल. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई इंडियन फर्म है, इंडियन फर्म को ये पता लग जाए कि कोई एमएनसी कंपनी एंटर करने वाली है इंडियन मार्केट में एक बहुत ही न्यू सब्सटीट्यूट ऑफ इट्स प्रोडक्ट के साथ, ठीक है. हमें पता भी चल गया है व्हाट इज़ द थ्रेट, दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स एंड दिस शुड वर्क एज वार्निंग सिग्नल फॉर दैट पर्टिकुलर इंडियन फर्म. इस इंफॉर्मेशन से इंडियन फर्म को पहले ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, एग्रेसिव समझते हो, ऐसी एडवर्टाइजिंग कि लोग जहाँ जाएं और देख के रुक जाएं कि यार ये कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो करना पड़ेगा. बिकॉज उसको पता है उसका कंपटीशन किसके पास साथ होने वाला है, थ्रेट क्या है, वार्निंग सिग्नल्स किसकी तरफ से आ रहे हैं, एमएनसी की तरफ से. अगर वो ऐसा नहीं करेगी इंडियन फर्म, तो एमएनसी के सामने वो नहीं टिक पाएगी, राइट. जैसे टाटा मोटर्स ने एक प्रपोजल निकाला था टू ब्रिंग आउट अ स्मॉल इकोनॉमी कार 2008 में, ठीक है. दैट वाज अ वार्निंग सिग्नल फॉर सुजुकी मारुति. तो सुजुकी मारुति को के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतनी इकोनॉमी कार टाटा मोटर्स वालों ने निकाली थी, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, दे हैव टू कट इट्स कॉस्ट या कोई इकोनॉमिक मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करना. अदरवाइज कहाँ जाते कस्टमर्स, टाटा मोटर्स, क्योंकि उनको एक स्मॉल इकोनॉमी कार विद अ रीजनेबल प्राइस अवेल हो रही थी. सो ये आपको देखना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो वो उन्हें ग्रैब कैसे करें. आपको आइडेंटिफाई करने हैं, हर किसी की लाइफ में, हर किसी की कंपनी में थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है. अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे और थ्रेट और वार्निंग के सामने आप हार जाओगे. आपको बार बार वार्न करा जा रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं, फिर भी आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजीज और प्लान नहीं कर रहे हो, सो यू विल नॉट एबल टू स्टैंड इन द मार्केट. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. देखो, कोई भी बिजनेस जब काम करता है तो वो समाज से रिसोर्सेज को उठाता है, राइट. एनी बिजनेस फर्म गेट वेरियस रिसोर्सेज या इनपुट जिसे आप कहते हो एनवायरनमेंट से लेता है और उस रॉ मटेरियल को डिज़ायर्ड गुड में कन्वर्ट करता है और गुड में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाता है. अल्टीमेटली हमारा रॉ मटेरियल, हमसे गुड लिया गया, हमारा एनवायरनमेंट से इनपुट लिया गया, उसको कन्वर्ट करके डिज़ायर्ड गुड्स में अल्टीमेटली वो हम तक पहुंचता है. अगर कोई भी मैनेजमेंट को इसकी थॉरो नॉलेज होगी कि कहाँ से वो रॉ मटेरियल अच्छा ले सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर रहेगी, कहाँ से फिनेंशियल रिसोर्सेज अवेल हो सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्राइस पर, राइट टाइम पर, अगर ये सब चीज़ों की एक्सटर्नल थॉरो नॉलेज किसी भी कंपनी को होगी, तो वो अच्छे दाम पर रिसोर्सेज को यूज़ करके, कन्वर्ट करके, अच्छे प्राइस पर, अच्छी क्वालिटी में मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. दैट इज़ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. देखो, ये बहुत ज़रूरी है, हर टाइम एक वॉच रखना, कीन वॉच रखना एनवायरनमेंट पे. ओके, इट वुड हेल्प टू सेंसिटाइज द फर्म मैनेजमेंट. टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, चेंजेस आर अ पार्ट. हर चीज़ कॉन्टीन्यूस घूमकर आपके पास आती है. इसी तरह आपके कॉम्पिटिटर्स कब आ जाएं एकदम आपको पता नहीं चलेगा, आप टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज हो जाए आपको पता नहीं चलेगा. अभी कोविड-19 की वजह से यू आर हैविंग ऑनलाइन स्टडीज़, यू नेवर नो, आपको नहीं पता कब तक ये चलने वाली है, कैसे ये चल गई, क्या आगे होगा. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आ जाए. कस्टमर्स, आज मैंने ये पेन मैन्युफैक्चर किया है मार्केट में, बहुत मन से मैंने ये पेन निकाला है,
बाहर मार्केट में पहुंचा, लोगों ने कह दिया इसकी तो ग्रिप अच्छी नहीं है, इसकी निब अच्छी नहीं है, हमें ये पेन पसंद ही नहीं आया. सो यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर. बट अगर आप पहले से कीन ऑब्जर्वर बनो, आप देखो, सोचो, समझो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड इन योर एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी गोइंग ऑन, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आप चलोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा एक रेस के साथ काम करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ काम करती है, हमेशा अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करती है और उनको पता है कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आनी है, उनको ग्रैब करती है, हाईटेक एरियाज़ में एमर्ज करती है. तभी तो रिलायंस का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का. उनको पता है उनके एक्सटर्नल कंडीशन और फोर्सेस क्या हैं, उनके साथ कैसे कॉप अप करना है. बस उनको प्रॉब्लम होगी नहीं. रिलायंस इंडस्ट्री को पता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, हमें पहले से पता है कि कैसे चेंजेस आ गए, क्या आने वाला है, उससे पहले वो कुछ नया डेवलप कर देते हैं. उनको उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है, उनको एमएनसीज़ पता है कौन सी सेटअप हो सकती है, उनको पता है पॉलिसीज़ में क्या चेंज आ सकते हैं. कीन वॉच रखना बहुत ज़रूरी है ऑन द ट्रेंड्स इन द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सी, एनवायरमेंट से आपको पता लगता है कि क्या थ्रेट हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में. अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी है, थ्रेड और वार्निंग सिग्नल आपके पास बार बार आ रहे हैं, आपको उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज दे कैन सर्व एज बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़. किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो आप पहले से ही आपके पास वार्निंग सिग्नल्स आ जाते हैं, और अगर आप उन्हें समझकर काम करते हो तो आपके काम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको वो ग्रैब करनी होगी. इफ़ यू वांट टू बिकम द फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, नहीं तो कोई और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ले जाएगा, आप बैठे रह जाओगे. राइट. लाइक रिलायंस कंपनी की बात कर लो, एयरटेल, हीरो होंडा, बजाज, आईटीसी, इन सभी ने बेटा अपने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं. सी, मैनेजमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन मैनेजमेंट बाहर मार्केट में नहीं घूमेगा तो सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं घूमेगा कि उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इन सब ने अपने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं जो मॉनिटर करते हैं ट्रेंड्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के. कौन सी सरकार बदलने वाली है, कौन से कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं, कस्टमर्स की चॉइस में चेंज आ गया है. राइट. कस्टमर्स अब हेल्दी फूड डिमांड करते हैं instead of that oily one, right? So the inputs provided by these experts are always useful in making policies and strategies. हमें अपना प्रोडक्ट किस डिज़ाइन का बनाना चाहिए, सेल्स प्रमोशन कैसा करना चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए या ज़रूरत ही नहीं है, क्या प्राइस रखना चाहिए कॉम्पिटिटर्स को देखकर. राइट. ओके. Now comes the sixth point, that is helps in improving performance. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का मतलब है सारी चीज़ों को टैकल कर पाना. आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल के बैठ जाओ, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री खोल के बैठ जाओ और आपको पता नहीं बाहर क्या चल रहा है. सो आप समझते हो कि आप सिर्फ अपने काम में रहोगे, आपको उस काम के साथ साथ बाहर के एनवायरनमेंट से भी डील अप करना है. सबसे बड़ा एनवायरनमेंट तो आपके कस्टमर आ गया. आपको पता ही नहीं जो आप बना रहे हो बाहर मार्केट में गया, कस्टमर को पसंद आया नहीं आया. सो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. हाउ? बिकॉज जब तक आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बेटा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, इट इनेबल्स द फर्म टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. कैसे? टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ की जाती है ना प्रोडक्शन में, अगर पता चल जाए कि कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है अब मार्केट में, अगर उसकी नॉलेज हो तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प इन इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस. असेंबली चेन चल रही है, लेट्स सपोज ये पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए असेंबली चेन लगाई हुई है, वही घिसी पिटी पुराना तरीका चल रहा है. पता ही नहीं है मार्केट में एक नया कुछ इम्प्रूव हो गई है टेक्नोलॉजी, नए टूल्स आ गए हैं इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसमें शायद लेबर की कम ज़रूरत पड़े. इतना सारा लेबर जो रखा हुआ है जिन्हें हम पे करते हैं, वेजेस देते हैं, वो कम हो जाए. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मीन्स टेक्नोलॉजी का अगर आपको पता चल जाए, और टेक्नोलॉजी से यह काम होता है, सारा काम ही टेक्नोलॉजी का है, अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी.
इसी से नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ इमेज बिल्डिंग। अगर सब कुछ इतना अच्छा है, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप नए प्रोडक्ट के साथ तुरंत मार्केट में उतर आते हो, आप बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बन जाएगी इन द आइज़ ऑफ कस्टमर। कितनी जल्दी एलजी ने अपनी एक ब्रांड इमेज मार्केट में बहुत कम टाइम में, इंडियन मार्केट में अपनी ब्रांड इमेज बना ली थी एलजी ने, सिर्फ अपने काम की वजह से। क्योंकि एलजी को पता था काम के साथ साथ मुझे अपने एक्सटर्नल फोर्सेस का ध्यान रखना है। एक्सटर्नल फोर्सेस में मैं फिर बताती हूँ बेटा, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों का देख रेख करना पड़ता है। आप बहुत आराम से बैठे हो, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ओवर अ नाइट डिमोनेटाइजेशन कर दिया, क्या हुआ? सब बैठे रह गए, सारा काम बंद हो गया। बूस्टअप होने में टाइम लगा 1-2 महीना, लेकिन उस टाइम पे तो जो आपने सोचा था सबका सब बंद हो गया। दैट इज़ लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें आपका कोई जोर ही नहीं है। आपको पहले से यू मस्ट बी विजिलेंट बिफोर what is going on around in the environment. That is why to have a proper knowledge about business environment is very important. So this is what we have read, the importance of business management. Next is जो हम पढ़ेंगे one by one is dimensions of business environment, जो मैंने अभी आपको बताया कितने तरह के dimensions हैं। लीगल, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। एक ही दिन में मैम आपके पास आई हैं, आकर बोलती हैं आपको TUK करना है, आपको ऑनलाइन खोलना है, आपने ID पासवर्ड डालने हैं और आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिससे रिलेटेड एक टेस्ट होगा। अब आपको पता चल गया है, अगर या तो आप पहले गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि अगर फर्स्ट आना है तो इस टेक्नोलॉजी को मुझे सीखना होगा, या बैठे रह जाओ, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दो, कोई और फर्स्ट आ जाएगा, राइट? चलो, द वेरी फर्स्ट वन हियर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलो, अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं बेटा, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बिजनेस पर वो सारी फोर्सेस जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे इंटरेस्ट रेट, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपके कस्टमर्स हैं, मतलब किसी भी हाल में आपका इंटरेस्ट रेट अप डाउन होगा तो इकोनॉमी बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट, जब प्राइसेस हाई होंगे तो किसी भी बिजनेस फर्म पे फ़र्क पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल क्या होती है? इनकम आफ्टर टैक्स, लोगों की, पीपल की। अगर इनकम आफ्टर टैक्स देने के बाद भी लोगों के पास पैसा बच रहा है तो पैसा खर्च करेंगे मार्केट में जाके। स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस हाई हो गए तो लोग पैसा खर्चेंगे, सामान खरीदेंगे मार्केट में जाकर। वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी अगर ठीक रही तो उससे जो कंपनीज फॉरेन कंपनीज़ के साथ डील करती हैं उन्हें बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सपोज 2 व्हीलर्स, बैंक ने ना अपने रेट्स कम कर दिए हैं, इंटरेस्ट रेट, कि भाई आप ले लो लोन, हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग हैं, 2 व्हीलर्स की या कार की, 4 व्हीलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई हो जाएगी। पता है कि भैया घर पे हाउस लोन में इंटरेस्ट रेट कम कर दें, तो अभी तो 10 ले रहे हैं, फिर 20 लेंगे। लोगों को पता है बैंक लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 2 व्हीलर्स और कार्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, जिससे इन कंपनी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम आफ्टर टैक्स, आप लोग अपने फादर से पूछना, सभी लोग टैक्स देते होंगे। टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है, अगर वो अच्छी इनकम बच जाती है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लोग स्पेंड करेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मीन्स दोज गुड्स दैट डिस्ट्रॉय बाय यूज़, इन जनरल यूज़, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा एरियर लगा दिया था पेमेंट पे, 7th पे कमीशन का सब वेट कर रहे थे, राइट। जैसे ही 7th पे कमीशन रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तुरंत ही 2 व्हीलर्स की, कार का, कंज्यूमर ड्यूरेबल का, इन सब का 2 महीने के अंदर अंदर डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। 7th पे कमीशन लग गई, उनके वेजेस बढ़ गए, हाई हो गए, और लोगों ने, अब जब वेजेस, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग मार्केट में जाएंगे, पैसा खर्चेंगे। लेकिन
डिमोनेटाइजेशन हुआ, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नवंबर 8 2016 में ये हुआ था, जिससे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इट लेड टू फॉल इन कैश सेल्स। लोगों के पास पैसा नहीं था तो मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? आपने देखा इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है। बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोग ने कहा कि ठीक है भाई, लोन लेते हैं और गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है, लोगों की टैक्स देने के बाद लोगों के पास पैसा अच्छा बच रहा है, ज़्यादा टैक्स इसमें बचत हो रही है, तो लोगों के पास पैसा बच रहा है, लोग जाकर अपने डेली यूज़ के प्रोडक्ट खरीदेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेंगे, डिमांड उनकी हाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेट कर रहे थे, एरियर लगाया हुआ था, जैसे ही रिकमेंड किया 7th पे कमीशन, लोगों के वेजेस बढ़े, बढ़ते के साथ ही लोगों ने 2 व्हीलर खरीदे, कार खरीदे, अलग अलग अपने शौक के सामान खरीदने शुरू कर दिए। डिमोनेटाइजेशन होते ही ओवर अ नाइट सेल, कैश सेल्स ख़त्म हो गया। 2 महीने में जनवरी 2017 में बढ़ा, थोड़ा ठीक पहुँचे हम, बट इसमें किसका फ़ायदा हुआ? डिमोनेटाइजेशन ने बूस्ट कर दिया ई मनी को। द फर्म्स हु आर डीलिंग विद ई मनी, जैसे पेटीएम के मज़े आ गए। आप भी बहुत जल्दी करते हो ना फ़ोन लेके, पेटीएम करते हैं मैम, आपको पेटीएम करते हैं हम। सो आप देखो उस कुछ टाइम में पेटीएम फर्म के लिए कितना फ़ायदा हो गया, राइट? अदरवाइज़ पहले कोई पूछता ही नहीं था पेटीएम को। सो इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस से डील करने वाले हर फर्म को फ़ायदा हुआ, अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ है, राइट? द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, लाइक फिस्कल पॉलिसी, बेटा फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसीज़ होती हैं सरकार की जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल चेंजेस आने। फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन के साथ ट्रेड करते हैं, अगर उसमें बैन लगा दें या गवर्नमेंट रोक टोक कर दे, जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कट इन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज क्या होता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक्साइज लाइक द गुड्स विच आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड विद इन द कंट्री। जैसे रेफ्रिजरेटर की बात कर लो आप, तो अगर रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर पे अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को कम कर दे तो अपने आप रेफ्रिजरेटर के सेल हाई हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और सेल्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे लिबरल फाइनेंस, ये तो बात की हमने एक्साइज ड्यूटी की, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लिबरल फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ट्राई नॉट टू कंट्रोल प्राइजेस एंड लेट ओपन फॉर कंपटीशन। गवर्नमेंट इसमें प्राइजेस को कंट्रोल नहीं करती है। टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, कंसेशनल रेट पर, तो इन यूनिट्स के मज़े आ जाएंगे। कोई भी आ सकता है कॉम्पिटिटर मार्केट में नया, गवर्नमेंट किसी के प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर रही है, कोई भी अपने प्राइजेस को लेकर मार्केट में ओपनली आ सकता है, तो कितना चेंज होगा एकदम से। इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, ठीक है, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने बेटा अभी आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताया था, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्री लाइसेंस दे दें कंपनीज़ को सेटअप होने का, तो कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आप भी आ जाओगे कूद के कि भाई हम भी इंडस्ट्री खोल लेते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, यू आर फ्री टू सेटअप योर ओन यूनिट। ये होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म में चेंज। अगर गवर्नमेंट रिमूव कर दे लाइसेंसिंग इन केस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज़, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर लेंगे। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ईजियर। अगर कैपिटल और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट हो तो सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। फिस्कल पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। दोज आर दी फिस्कल पॉलिसीज़। लेड टू रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी, मैंने अभी एग्जांपल दिया था बेटा, अगर गवर्नमेंट रेफ्रिजरेटर पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई हो जाएगी और सेल्स बढ़ जाएगी। इसी तरह कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी में टैक्स इम्पोज करना, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें चेंजेस आएँ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। देन कम्स इफ़ इंडियन कंपनीज कैन रेज फंड इन द फॉरेन मार्केट। अगर इंडियन कंपनीज फंड रेज करना चाहें फॉरेन मार्केट से, ये गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, उसके लिए क्या इशू कराना होता है, ये आप आगे पढ़ोगे अच्छे से, जिसे बोलते हैं GDRs और ADRs। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज़ GDR, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इज़ ADRs। ये इशू करके आप फॉरेन मार्केट से पैसा फंड रेज कर सकते हो।
आप इन्हें इशू करा के फॉरेन मार्केट से फंड रेज कर सकती है कोई भी इंडियन मार्केट, ठीक है। प्राइवेट एयरलाइंस को परमिशन मिल जाए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर सर्विसेज देने की, तो कितना फ़ायदा होगा। प्राइवेट एयरलाइंस को अगर परमिशन मिल जाए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर सर्विसेज देने का, तो ये उनके लिए फ़ायदा होगा। सो ये सब होते हैं इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस जो अभी आपने सब पढ़े, जिसमें आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा, आपने एक्साइज ड्यूटी पढ़ा, आपने लिबरल फाइनेंस पढ़ा, कस्टम ड्यूटी पढ़ा, इन सब चीज़ों, डिमोनेटाइजेशन पढ़ा, इन सब चीज़ों के चेंज होने से कितना फ़र्क लोगों पर और किसी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। आपकी इनकम आफ्टर टैक्स, अगर लोगों के पास पैसा बचता है तो वो मार्केट में जाएंगे, खर्च करेंगे। स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होगा तो वो मार्केट में जाएंगे और शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट वी विल स्टडी social environment, but we will discuss it tomorrow. Just revise it, what we have discussed today. That's it for today. Thank you so much. Have a good learning.